Namaskar दोस्तों. Today we are going to focus on the types of breathing. We need to understand the various types of breathing for deepening our control over our breath. As we all know, breath is that bridge which can make your mental health excellent, which can make your physical health excellent. It's the bridge between these two, the body and the mind. So anytime you want to excel as far as your mental health is concerned, you have to take charge of your breath. Anytime you want to excel as far as your physical health is concerned, you have to take charge of the breath. Breath is the barometer of the nervous system. So if you don't know the basics of breathing, if you don't know how to control your breath, how to take charge of your diaphragm, how to take charge of the various muscles which help us in breathing, then it will become difficult for us to deepen our breathing practices, breathing exercises. So in that series, today we are going to touch upon the types of breathing. कितने प्रकार के ब्रीदिंग होती हैं, कैसी होती हैं और उनका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं अपनी हेल्थ को एलिवेट कर. जैसा कि हम जानते हैं, ये चेस्ट कैविटी है, छाती और नीचे पेट. चेस्ट कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, इन दोनों के बीच में डिमार्केशन होता है, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, डिस्कस कर चुके हैं. डायाफ्राम है, इट इज अ वेरी पावरफुल मसल जो डिमार्केट करता है चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी. चेस्ट कैविटी में दो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. लेफ्ट साइड में आपका हार्ट होता है मेनली, और दो लंग्स होते हैं, राइट लंग, लेफ्ट. अब जो फेफड़े हैं उनको मान लीजिए वो एक तरह से गुब्बारे के जैसे होते हैं, लंबे गुब्बारा मान लीजिए. एक लंबा गुब्बारा यहाँ पर है, एक लंबा गुब्बारा. अब उस जो लंग्स हैं इनमें तीन फ्लोर्स हैं, बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर, और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर. ठीक है, फ्लोर्स बने नहीं हुए, लेकिन आप एक 1/3 डिवाइड कर सकते हैं. 1/3 अपर एंड की तरफ, 1/3 इन द सेंटर, 1/3 इन द लोअर एंड. अगर जब हम सांस लेते हैं हवा मेनली अपर 1/3 में जाती है तो एक प्रकार की ब्रीदिंग, अगर बीच में जाती है तो दूसरे प्रकार की ब्रीदिंग होती है, अगर सबसे नीचे जाती है तो तीसरे प्रकार की. ये तीन प्रकार के ब्रीदिंग्स हैं. इनसे डिसाइड होगा कि हम लंग का किस पार्ट को मेनली यूज कर रहे हैं, लंग के किस पार्ट को यूज कर रहे हैं. द पार्ट ऑफ लंग विच इज बीइंग यूज्ड व्हेन you are breathing. Breathing means inhalation and exhalation both. If we are using mainly the upper 1/3, then it's one type of breathing. If you are using the middle 1/3, then it's another type of breathing. If you are using the lower 1/3, then it's another type. But remember, these floors, the upper third, middle third, and lower third, they are not airtight compartments. So if you mainly are using the upper 1/3, then some air will go to the middle 1/3, and some air will definitely go to the lower 1/3. If you are similarly, if you are using the middle or the lower 1/3, then the air will go to the other parts also. But mainly you are focusing on that particular 1/3. Okay. So if you are able to put air, mainly air, say 60% of the air which you are inhaling in the upper 1/3 of the lungs, then it becomes apical breathing. Apical breathing. It is also known as medically clavicular breathing. If you are able to put air into the middle 1/3, then it becomes chest breathing. Medically, it is known as thoracic breathing. And if you are able to put air into the lower 1/3 of the lungs, then it becomes abdominal breathing. Medically, it is known as diaphragmatic breathing. So remember, these are the three types of breathing: apical breathing, chest breathing, and abdominal breathing. Medically, clavicular breathing, thoracic breathing, and diaphragmatic breathing.
I hope this concept is clear. Now, when we come to the anatomy of the lungs has got no muscles at all. It's totally elastic tissue. This is very important to understand. That's why there is importance of doing breathing exercise, some sort of breathing exercise. Because if we do some sort of breathing exercises, then we are able to maintain the elasticity of the lung tissues. There are no muscles. It's the elastic tissue, elasticity of the lung tissue, which we need to maintain for a longer period. And the longevity also depends upon the elasticity of this lung tissue. If the elasticity remains good for a longer period, you will be able to live for a longer, you will have a good lifespan. Not only good lifespan, healthy lifespan. So we were talking about the 3 types of breathing. So there are various ways where you can, make sure that mainly the upper third is activated or lower third is activated or middle third. See, if I am using my diaphragm, in that case, I am putting air in the lower, mainly in the lower 1/3 of the lungs. Abdominal breathing doesn't mean air will be going inside the abdomen. Air will remain only in the lung, but the lower half or lower 1/3 of the lung is being used while breathing in and breathing. That is diaphragmatic breathing or abdominal. And in that, what happens when I'm inhaling, the tummy goes out. When I'm exhaling, the tummy goes in. Inhalation, exhalation. सांस प्रश्वास, सांस लेना, सांस छोड़, सांस लेना, सांस छोड़. I am using my diaphragm. Okay. When I am a chest breather, that in that if you are a chest breather, I'm breathing using my chest mainly. I am putting air in the middle 1/3 of the lungs. Of course, air will go to the lower and the upper 1/3 also, but mainly more than 50% air will go to the middle part of the lungs, both the lungs. Okay, that is chest breathing. See, here I am not using my diaphragm at all. Here I am using the muscles of the rib cage. See, there is no movement as far as abdominal wall is concerned because diaphragm is not moving at all. And if I extend this chest breathing, then it becomes apical breathing towards the end. First, the middle part will get filled, then the upper part will get. Or another way of doing apical breathing, which is very simple and very easy, is imagine there is a hole in this sternal notch. This is the sternal notch. In yogic science, we call it कंठकूप. कंठकूप, ये देखिए यहाँ पर एक गड्ढा सा है ना, इसको स्टर्नल नॉच बोलते हैं. ऐसे विजुअलाइज करिए, इमेजिन करिए कि यहाँ पर एक छेद है and you are breathing in and breathing out through that hole in the neck. Just see. Of course, air is going to go only from the nostrils, but you have to just visualize. When you visualize, you activate the upper 1/3 of the lungs. That's the beauty. See. See the movement of the hands also. They are moving because the apical region of the lungs or the upper 1/3 is getting activated, participating. In the normal breathing, upper 1/3 hardly takes part in the normal breathing. Whenever there is distress because of any reason, because of any disease, or when you are jogging, walking, you require a lot of oxygen, or you are climbing upstairs, you become breathless. Then only you use this. Now, in normal breathing, it is not being used. Usually use middle third and the lower third. So this is apical breathing. Okay. Now, these are the 3 types. 1, 2, 3. Which one is the best? That we will see. Just see the anatomy of the lungs. The oxygen exchange takes place because there are terminal alveoli. Alveoli is towards the end of the
lung tissue, there are सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो छोटे छोटे गुब्बारे जैसे होते हैं, बहुत पतली उनकी झिल्ली सी होती है, बहुत पतली स्किन होती है, जिसमें से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर चली जाती है और बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर आ जाती है। तो जब हम इनहेल करेंगे ऑक्सीजन अंदर जाएगी, फिर बॉडी को मिल जाएगी ऑक्सीजन, और जब हम एक्सहेल करेंगे CO2 बाहर निकल जाएगा बॉडी। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म विच हैपेंस व्हेन यू आर ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग। सांस लेना, सांस लेना मीन्स आप ऑक्सीजन ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? इन्हीं झिल्लियों के थ्रू ब्लड वेसल्स में जाती है, फिर बॉडी, पूरी बॉडी में चली जाती है ऑक्सीजन। ऐसी जो टॉक्सिन्स हैं पूरी बॉडी के, वो यहाँ पर आ जाते हैं, और इन्हीं एल्वियोलाई, जो छोटे छोटे बैलून जैसे गुच्छे हैं, अंगूर के गुच्छे जैसे होते हैं ना, वैसे ही होते हैं एल्वियोलाई। उनमें से इतने पतले होते हैं कि CO2 अंदर आ जाती है लंग्स में, और जब आप सांस छोड़ते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, CO2 बाहर चली। तो ये जो गुच्छे होते हैं, सैक्स होते हैं, अंगूर के गुच्छों के जैसे, एल्वियोलाई बोलते हैं इनको, एल्वियोलाई। ये कहाँ पे होती है? ये मेनली लोअर एरिया में होती है, मेनली। मिडिल में भी है, अपर में तो बहुत ही कम है, मिडिल में थोड़े ज्यादा है, और सबसे ज्यादा डेंसिटी इनकी, खूब ज्यादा डेंस है इनकी प्रेजेंस यहाँ पर है, नीचे। ठीक है ना? दूसरा दूसरा ये है कि क्योंकि ग्रेविटी में देखिए, हम 24 घंटे में से 16 घंटे या बैठे होते हैं या खड़े होते हैं। 8 घंटे आप सोएंगे ना, 7 से 8 घंटे, बाकी 16 घंटे क्या कर रहे होते हैं आप? बैठे होते हैं या खड़े होते हैं। तो ग्रेविटी की वजह से जो ब्लड सप्लाई है, सबसे ज्यादा नीचे के हिस्से में, बीच के हिस्से में ब्लड सप्लाई अच्छी है, बट इतनी अच्छी नहीं है जितनी नीचे के हिस्से में, और ऊपर के हिस्से में ब्लड सप्लाई बहुत ही कम, बहुत ही कम। तो इसीलिए मेडिकल साइंस में जो भी इन्फेक्शन ऊपर के हिस्से में होता है, वो आराम से ट्रीट नहीं होता। जैसे ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस एपाइकल रीजन में बहुत होता है, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम है, और उनको इनको ठीक से, जल्दी से ठीक भी नहीं कर सकते, लंबा ट्रीटमेंट चलता है अगर जो भी इन्फेक्शन ऊपर के हिस्से में हो। ठीक है ना? तो आप देखिए, दो चीजें हमें पता लगी। एक तो जो ग्रेप लाइक एल्वियोलाई गुच्छे हैं, दे आर वेरी डेंस इन द लोअर एरिया, एंड सेकंड, ब्लड सप्लाई इज एक्सीलेंट इन द लोअर एरिया. So if you require oxygen, then, or if you require more oxygen, or if you require good amount of oxygen, then you need to use your diaphragm effect. You need to learn that how to use the diaphragm. इसलिए डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग, ये बेस्ट फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग। क्यों? क्योंकि ये लोअर 1/3 को यूज करती है। लोअर 1/3 में क्या होता है? आपके एल्वियोलाई सबसे ज्यादा है, एक्सचेंज गैस का बहुत अच्छा होगा। दूसरा, ब्लड सप्लाई सबसे बढ़िया। तो दोस्तों, अगर एक सिंगल टाइप ऑफ ब्रीदिंग, जिसको हम फिजियोलॉजिकली एफिशिएंट ब्रीदिंग बोलते हैं, वो है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग या एब्डोमिनल। क्यों? क्योंकि नीचे का हिस्सा यूज कर रही है। नीचे के हिस्से में क्या है? एल्वियोलाई सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स है। तो आपको ऑक्सीजन बहुत अच्छी मिलेगी, और CO2 भी आप ज्यादा बाहर फेंक पाएंगे अगर आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार की ब्रीदिंग्स हैं। इसमें सबसे अच्छी ब्रीदिंग कौन सी है? डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग या एब्डोमेन। एक चौथी वैरायटी की ब्रीदिंग होती है, उसमें क्या होता है? चेस्ट ब्रीदिंग और एब्डोमिनल ब्रीदिंग दोनों कंबाइंड, उसको बोलते हैं योगिक ब्रीदिंग। योगा में उसको योगिक ब्रीदिंग बोलते हैं, और ब्रेथ वर्क्स में उसको बोलते हैं टोटल ब्रेथ। टोटल ब्रेथ इंक्लूड्स बोथ द चेस्ट वॉल ब्रीदिंग एज वेल एज एब्डोमिनल वॉल ब्रीदिंग। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, नॉर्मली साइड से अगर आप देखें, एब्डोमिनल ब्रीदिंग में क्या है? सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़। चेस्ट ब्रीदिंग में क्या है? सांस ले रहा हूँ, छोड़। और एब्डोमिनल जो योगिक ब्रीदिंग में क्या होगा? दोनों चीजें कंबाइंड कर दी। देखिए, पहले मैंने डायाफ्राम, फिर छाती, फिर देखिए, पहले डायाफ्राम यूज किया, फिर रिब केज यूज किया। दोनों चीजें यूज हो रही हैं। तो चेस्ट ब्रीदिंग प्लस एब्डोमिनल, ये सबसे बढ़िया ब्रीदिंग है। लेकिन ये आप हर वक्त नहीं कर सकते। हर वक्त आप डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग कर सकते हैं, हर वक्त आप चेस्ट ब्रीदिंग कर सकते हैं। लेकिन डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग हमने देख लिया सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। अगर मान लीजिए आपको एक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आपको 500 ml ऑक्सीजन चाहिए 1 मिनट, तो
आप अगर चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे तो आपको कितनी बार करना पड़ेगा? 14 से 16 बार करना पड़ेगा, इतनी ऑक्सीजन जो कि बॉडी की रिक्वायरमेंट। वही अगर आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे तो आपका 10 सांसों में ही काम चल जाए। इसी को बोलते हैं फिजियोलॉजिकली एफिशिएंट। 10 सांसों में ही आपको 500 ml ऑक्सीजन मिल। क्यों? क्योंकि एल्वियोलाई बहुत ज्यादा है और ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी है, तो आपको जो ऑक्सीजन, जो भी आपने ऑक्सीजन ली, वो आपको जल्दी से अंदर बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी, बॉडी को मिल जाएगी। तो फिजियोलॉजिकली एफिशिएंट ब्रीदिंग का मतलब ये होता है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो बहुत अच्छा है, ऑक्सीजन बहुत अच्छी मिलती है, CO2 आप ज्यादा बाहर निकाल सकते हैं, इसको वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो, गुड वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। So if it comes to physiologically efficient breathing, then diaphragmatic breathing or abdominal breathing is the most physiologically efficient form of breathing. You have to have this. एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, एपाइकल ब्रीदिंग क्या है, चेस्ट ब्रीदिंग क्या है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्या है। अब चेस्ट ब्रीदिंग में स्ट्रेस रहता है क्योंकि आपको वर्कलोड बढ़ जाता है हार्ट का। देखिए चेस्ट ब्रीदिंग हमने देखा आपको 14 से 16 बार लेनी पड़ेंगी, और एब्डोमिनल ब्रीदिंग लेंगे तो आपको 10 से 12 बार लेनी। अगर आपको कम काम करके ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाए तो बेहतर है शरीर के लिए, शरीर को रिलैक्स रहेगा, शरीर को रिलैक्सेशन का टाइम मिलेगा, आराम से काम कर पाएगा और ज्यादा एफिशिएंटली काम। तो दोस्तों, हैव ए क्लियरिटी अबाउट दिस टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग. These are the 4 types of breathing you should understand first. Then only we can proceed further and see how to deepen the diaphragmatic breathing and what are the benefits. These things we are going to touch upon in the next video.